a special time for us to listen from God's words. And today we have a very vibrant leader of our church who was a missionary in Nepal, Rwanda, and at present he is the member of the Department of Liturgies and Sacraments, as well as he teaches the seminarians in our St. Ignatius Theological Seminary. And he is a very kind and calm our Achan. And it was my privilege to study with him also. And today, the speaker about whom I have said here, he is none other than Deacon Abel Purnus. He will be coming and teaching us from the Word of God. So I humbly invite Deacon, please come and share the Word of God. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. हेलो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में I acknowledge the presence of all our episcopas here. और हमारे जितने भी एपिस्कोपा हैं उनकी उपस्थिति को मैं स्वीकार करता हूं Your eminences, your graces, respected fathers, और हमारे जो आदरणीय जो याजक हैं and all the youth leaders and missionaries who are there in our midst. और यहाँ पर जितने भी हमारे जवानों के जो अगुवे हैं As I stand here, और जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ I realize that I am merely reaping the fruit of your harvest. I'm just taking the fruit of your harvest. और मैं यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो आपके सेवा के फलों को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ And I am humbled, और मैं अपने आप को दीन करता हूँ and I feel a little embarrassment to stand here, but I realize all glory is for God alone. और यहाँ पर खड़े होकर के मुझे थोड़ी सी घबराहट से भी महसूस हो रही है I ask for your prayers and blessings. और मैं आप सबकी प्रार्थनाओं को चाहता हूँ Okay, so believers youth, बिलीवर्स यूथ how are you? आप सब कैसे हैं All good? क्या आप सब अच्छे हैं So let me ask you, what did you learn yesterday? मुझे आपसे पूछने दीजिए कि आपने कल के दिन क्या सीखा What did Deacon Paul teach you? Deacon Paul, what did Deacon Paul teach you? और डीकन पॉल क्या सिखा रहे थे आपको He taught you about the prodigal son. उन्होंने उड़ाऊ पुत्र के विषय में शिक्षा दी Do you remember? क्या आपको याद है And yesterday, Bishop Barnabas was also talking to you. और कल शाम को हमारे बिशप बर्नाबास ने भी बात की आपसे What did he talk to you about? और उन्होंने किस विषय में शिक्षा दी Can you tell me one thing from the scripture that he talked about? और क्या आप किसी एक खंड के विषय में बता सकते हैं जिनसे उन्होंने शिक्षा दी थी Okay, he preached on healings. Very good. और उन्होंने चंगाई के विषय में प्रचार किया था And he was also talking specifically about the healing of a bleeding woman. और वहां पर वे बात कर रहे थे एक ऐसे महिला की चंगाई की जिनको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था So yesterday you heard returning to home, कल आपने सुना कि घर वापसी कैसे करें and you also heard about the healing of our Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की चंगाई के विषय में भी हमने सुना And now the question is, what should I do now? और सवाल अब यह है कि अब मुझे क्या करना होगा How should I continue living? मैं किस तरह से अपने जिंदगी को मैं जीता रहूं Now I want to talk to you about our metropolitan who repost. Our metropolitan who repost metropolitan of blessed memory. और हमारे जो चिर स्मरणीय हमारे मेट्रोपॉलिटन हैं उनके विषय में मैं बताना चाहता हूं Our metropolitan started serving God when he was 17 years old. और हमारे मेट्रोपॉलिटन ने परमेश्वर की सेवा उस समय से आरंभ करी जब उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी
He was a missionary in so many places. और बहुत सारे स्थानों में मिशनरी के रूप में उन्होंने सेवा करी। He went to many parts of northern India and preached the gospel, distributed gospel tracts. और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में जाकर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार की पत्रिकाओं को बांटा। He was sometimes even beaten for sharing the gospel. और सुसमाचार प्रचार के कारण उनको मारा भी गया, पीटा भी गया। But he continued sharing the gospel in spite of all the struggles. लेकिन सारे संघर्षों के बीच में भी लगातार उन्होंने सुसमाचार प्रचार जारी रखा And he continued serving God. और लगातार वो परमेश्वर की सेवा करते रहे। But one day he decided, परंतु एक दिन उन्होंने फैसला लिया let me go back to this one particular village where I once preached the और gospel. उस स्थान में मैं लौट करके जाऊंगा जिस स्थान में मैंने सुसमाचार प्रचार किया था। And he was expecting, I preached the gospel there, so many people came to Christ. और उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रचार किया और वहां पर बहुत सारे लोग मसीह में आ गए All those people will be there, I want to meet them. और वो उत्साहित थे कि उन सारे लोगों से मैं जाकर के मिलूंगा। And he took a journey and he went to that particular village. और उन्होंने यात्रा करी और उस स्थान में पहुंच गए। But when he went to that particular जब वो village, स्थान में गए what he saw was very disheartening. और उन्होंने जो चीज देखी He was very sad what he saw. और जिन चीजों को उन्होंने देखा उनको देखकर उनको काफी निराशा हुई। All the people who once accepted Christ, all the people who once accepted Christ और जितने लोगों ने जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, are not there anymore. जिन्होंने ग्रहण किया था वो अब वहां पर नहीं थे They were not continuing in their faith. और वहां पर वो नहीं थे They went back और वो वापस चले गए थे and he was extremely sad. और वो बहुत ज्यादा निराश हो गए। And he started wondering from that day, और उस दिन से उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के सोचना शुरू किया what could be the reason? आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। He was thinking about it. और उसके विषय में सोच रहे थे And later, after many years, और बहुत सालों के बाद he came to know of the answer. और उनको उत्तर मिल गया He understood he was missing something. और उनको एक बात समझ में आ गई कि कुछ तो ऐसा तथ्य है जिनसे वो चूक गए थे। He realized a church was missing. और वो इस बात को जान गए कि जो कलीसिया थी वो नहीं थी वहां पर। He understood church is the master plan of God. और उन्होंने इस बात को समझ गया कि कलीसिया ही है कि वो परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना के अंतर्गत है It is the most central aspect of our salvation. और हमारे उद्धार का ये मुख्य केंद्र है। And he realized church was the missing piece in his work. और उन्होंने पहचाना इस बात को कि उनके कामों में वो कलीसिया ही थी जो छूट रही थी। Without church, बिना कलीसिया के none of us can live a life against sin. और हम लोग कभी भी एक ऐसा जीवन हम लोग नहीं जी सकते। Many of us, when we hear about sin, और बहुत बार when we hear about sin, when we hear about sin, जब हम पाप के विषय में सुनते हैं we are thinking there are so many rules God gave, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे नियमों को दिया and we have to obey all these different rules. और वो सारे नियमों का हमको पालन करना होगा। And when we break one rule, और जब हम एक आज्ञा को तोड़ते हैं we are sinning. और हम पाप करते हैं And we try again. और हम फिर से प्रयास करते हैं Oh, you will read the 10 commandments, और आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं you will read all the instructions, और सारे निर्देशों को आप पढ़ते हैं and once you will realize, oh, I broke this instruction. और आप देखेंगे कि हाँ मैंने इस नियम को तोड़ दिया। We often see our Christian life as a court, और हमारे जो मसीही जीवन को हम लोग एक कोर्ट के रूप में हम लोग देख सकते हैं and we often see sin as breaking of a law. और हम लोग देख सकते हैं कि जो पाप जो है वो हमेशा व्यवस्था को तोड़ता है। But that is not the right way of seeing sin. लेकिन पाप को इस तरह से देखना सही तरीका नहीं है। Sin is seen as a sickness. पाप को एक बीमारी की तरह देख सकते हैं। St. Paul says in the scriptures, संत पौलुस वचन में लिखते हैं, I know what is right, वो कहता है कि मैं जानता हूं कि सही क्या है, but I am so dead in sin that I am not able to do what is right. लेकिन फिर भी मैं जो करना चाहता हूं जो अच्छी चीज है वो मैं नहीं कर पाता। The sickness of sin is around all of us. और जो पाप की जो बीमारी है वो हम सब के चारों तरफ है। It is not a set of rules and regulation that we are following. और वो नियम और कानून नहीं है जिसका हम पालन करते हैं। So the question that we need to ask today, एक सवाल आज हमको पूछने की आवश्यकता है, how can we live a life against sin?
कैसे हम पाप के विरोध में या पाप के खिलाफ हम जीवन जी सकते हैं। The sickness of sin. जो पाप की बीमारी है, How can we conquer it? हम कैसे विजय पा सकते हैं। Again, let me come back to my first question. और एक बार फिर से मुझे वापस आने दीजिए। What is a church? आखिर चर्च है क्या, कलीसिया है क्या? Why do we go to a church? हमें चर्च जाने की जरूरत क्यों है? People think it is an institution, we go every Sunday and come back. और लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया मात्र एक संस्था के समान है जहां पर हम हर रविवार को जाते हैं और वापस आ जाते हैं। And people think we have to go, do all the things, come back to our house. और कुछ लोग सोचते हैं कि वहां पर जाना है हमको और कुछ करना है और वापस आ जाना है, But that is not the church. लेकिन वो चर्च नहीं है। I want to tell you about the story of Good Samaritan. और मैं आपको एक जो अच्छा जो सामरी है उसकी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। Have you all heard about the story of Good Samaritan? क्या आप लोगों ने उस भले सामरी की कहानी आपने सुनी है? If you have heard of that story, can you raise your hands? क्या अगर आपने कहानी सुनी है तो अपने हाथों को आप उठाएं। Everyone has heard it. और हर एक ने उस कहानी को सुन रखी है। And you will be saying, from Sunday school I am hearing this story. और आप ये भी बोलेंगे कि जब मैं संडे स्कूल में जा रहा था तब से तो मैं इस कहानी को सुनता चला आ रहा हूँ Father, I know the moral of the story. और मैं पूरे कहानी को मैं जानता हूँ I know what I have to learn from that story. और मैं ये भी जानता हूँ कि उस कहानी से मुझे क्या सीखना है। The story is you should help other people. और ये जो कहानी है जो दूसरों की मदद करने के विषय में है, And that is what we were all taught. और ये सब तो आपको सिखाया गया है, But that is not the real essence or the real understanding of that particular story. लेकिन उस कहानी का जो मुख्य जो विषय है, जो मुख्य जो मुद्दा है, जो मुख्य वो सार है, वो नहीं है। The real understanding of that particular story is quite different. और उस कहानी की जो वास्तविक जो समझ है वो अलग है। What was the saint that we talked about today morning? और आज हमने जिस संत के विषय में हमने सुना वो कौन संत है? Louder. जोर से बोलिए। Saint John Chrysostom. सेंट जॉन क्रिसोस्टम। Saint John Chrysostom gives an explanation of this story. जो सेंट जॉन क्रिसोस्टम है वो इस कहानी का वर्णन वो करते हैं, The story of Good Samaritan. जो भला जो सामरी है उस कहानी का। In the story of Good Samaritan, जो सामरी है उसकी कहानी में that man who is lying on the road, एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, that man is each one of us. और वो जो मनुष्य है वो हम में से हर एक हैं। That Good Samaritan लेकिन वो जो भला जो सामरी है is Christ himself. वो स्वयं मसीह यीशु है। Can you please display that first icon? Okay, you can see an icon here. और यहाँ पर आप एक आइकॉन को आप देख सकते हैं। This icon is inspired by the telling of St. John Chrysostom. और ये जो सेंट जॉन क्रिसोस्टम की जो कहानी है उससे उसके प्रेरणा से है। We humans left a life with God. और हम मनुष्यों ने परमेश्वर के साथ की जो जिंदगी थी उसको हमने छोड़ दिया। The story of Good Samaritan says a man traveled from Jerusalem to Jericho. और वो कहानी ऐसा बताती है कि वो व्यक्ति जो था यरूशलेम से यरीहो की ओर वो यात्रा कर रहा था। Jerusalem was on top of the hill यरूशलेम जो था बिल्कुल घाटी के ऊपर था and Jericho was a city very down. और यरीहो जो थी बहुत ही वो ऐसा शहर था जो निचले स्थानों में बसा हुआ था। Like that man, we left our heavenly life with God and we left him. और बिल्कुल वैसे ही उस मनुष्य के समान हमने परमेश्वर के साथ अपने स्वर्गीय जिंदगी को छोड़ दी। And as we were traveling alone, और जब हम अकेले यात्रा कर रहे थे the demons and darkness of this world, और तब इस संसार के दुष्टात्माओं ने और अंधकार की शक्तियों ने they came and attacked us. वो आकर उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया We were living a life of sin. और हम लोग पाप की जिंदगी जी रहे थे They tore our clothes. और उन्होंने हमारे वस्त्र फाड़ दिए We were clothed with the life of immortality. और हम तब फिर अनंत जीवन के वस्त्र से हम ढांके गए And it was torn. और वो फाड़ दिया गया था And we were laying on the road half dead. और वहां पर हम लोग अर्धनग्न सड़क के किनारे अधमुए पड़े हुए थे। Christ came down for us. मसीह हमारे लिए उतर आए He took us on his own animal और उन्होंने स्वयं हमें अपने हाथों से उठाया and he carried us और वो हमें ले जाने लगे अपने साथ and he took us. और वो हमें ले लिए अपने पास। Not only that, he took us somewhere. और केवल यही नहीं वो हमें किसी स्थान में ले गए।
Can you show the next slide? He put us on his own animal और वो अपने खुद के सवारी के ऊपर उन्होंने हमें चढ़ा दिया and he took us to a particular place. और वो हमें एक विशेष स्थान में ले गए And he told the person in that particular place, और उस स्थान में जो व्यक्ति वहां का जिम्मेदार था उसको उसने कहा, he said, until I come back, जब तक मैं दोबारा लौट करके ना आऊं, please take care of this particular person. और ये जो बीमार व्यक्ति है उसको देख रेख करना। Do you know what that place is? और क्या आप जानते हैं कि वो जगह कौन सी है? That place is the church. और वही तो स्थान को कलीसिया कहा जाता है, चर्च कहा जाता है। Church is the place of healing. कलीसिया चंगाई की जगह है He entrusted us to the church. और उसने हम जैसे लोगों को कलीसिया को सौंप दिया। Church is the place of our healing of soul and body. कलीसिया वो स्थान है जहां पर हमारे आत्मा और शरीर की चंगाई होती है। If we want to continue this journey of fighting against sin, यदि पाप के साथ अपने संघर्ष की लड़ाई को अगर हम जारी रखें, the sickness of sin, जो पाप की बीमारी है, we have to continue being in the church, हमें लगातार हमको चर्च में बने रहना होगा। a place of healing. एक ऐसा स्थान जो चंगाई का स्थान है। Church is a hospital कलीसिया एक अस्पताल के समान है where both you and I जहां पर आप और मैं, are continuously living a life of healing. वहां पर हम लोग लगातार निरंतर चंगाई की जिंदगी हम जीते हैं। The moment we try to live a life apart from the church, और चर्च से अलग होकर जिस घड़ी हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, we are going away from the place where Christ carried us to. और उस स्थान में जहां पर मसीह हमको ले गए थे, उस स्थान से हम दूर चले जाते हैं। We are leaving that place and going our own way. उस स्थान को छोड़कर हम अपने खुद के चुने हुए रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं, With the sickness that is with us. और वो बीमारी के साथ जो बीमारी हम में है। And the more time we are away from church, और जितना ज्यादा हम लोग चर्च से दूर होते हैं, the sickness will continue to grow. और वो बीमारी लगातार बढ़ती चली जाएगी। Have you heard of this disease called leprosy? क्या आप लोगों ने कोढ़ की बीमारी के विषय में सुना है? If you have seen people with leprosy, यदि आप लोगों ने कोढ़ से ग्रस्त बीमारों को अगर देखा होगा, you would have seen they might have lost a hand or a feet. और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने हाथों को खो दिया, अपने पैरों को खो दिया, Sometimes their body parts will be deformed. और उनके कई बार जो शरीर के जो अंग होते हैं वो गल जाते हैं। Leprosy does not make them like that. और जो कोढ़ है वो कोढ़ ने ऐसा उनको नहीं बनाया। What happens is when you get leprosy, you lose the sensation of pain. जब आपको हो जाता है तो जो दर्द की संवेदना है वो आपकी खत्म हो जाती है। So if you have leprosy, you will not feel pain. यदि आपको कोढ़ हो जाता है तो आपको दर्द नहीं होता है। Somebody can break your finger, you will not feel pain. अगर आपके उंगलियों को कोई तोड़ भी दे तो आपको कोई दर्द नहीं होगा। If you get an injury in your feet, you will not feel that pain. अगर तुम्हारे पैरों में चोट भी लगती है तो तुमको दर्द महसूस नहीं होगा। So people with leprosy, once they get leprosy, they will not realize it. एक व्यक्ति जब इसको कोढ़ हो जाता है वो उस चीज को स्वीकार नहीं करते, उनको समझ में नहीं आती And they चीजें, will keep hurting themselves. और वो लगातार अपने आप को चोटिल करते रहते हैं। And sometimes they will break their fingers, और hitting कभी somewhere. कभी वो अपने उंगलियों को तोड़ देते हैं They will not realize it. और उनको पता भी नहीं चलता, They will continue going in and doing their daily work. और वो लगातार वो जाते रहते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों को करते हैं। But once it is too late, लेकिन एक बार जब ज्यादा देर हो जाती है when they see that something is wrong, और तब उनको समझ में आता है, दिखता है कि कुछ तो गलत है, they'll go back to the hospital. और तब फिर वो अस्पताल की ओर रुख करते हैं, And they will say, I have this problem, I broke my fingers. और तब वो बताते हैं कि मुझको ये समस्या है, मेरी उंगली टूट गई है, And by that time, it's too late. और उस समय तक काफी विलंब हो चुका होता है। If we are living in a world of sickness of sin, यदि हम लोग इस पाप से भरी हुई बीमारी के संसार में जीते हैं, the more we are away from church, जितना ज्यादा हम लोग चर्च से दूर होते हैं we will continue living a life of sin. और लगातार हम लोग पाप की जिंदगी जीते रहेंगे, We will not even realize it. और हमको पता भी नहीं चलेगा। But once our life takes a very extreme wrong turn, we will realize it. लेकिन जब हमारी जिंदगी एक ऐसे दूर के गलत मोड़ में हमको ले जाती है, तब हम वहां पर पहचानते हैं, It will be too late at that time. और उस समय काफी देर हो चुका होगा।
Church is a hospital, a place of healing. कलीसिया एक अस्पताल है, वो चंगाई की वो जगह है। When I say church is a hospital, जब मैं कहता हूं कि चर्च एक अस्पताल है, I want you to understand two main things. मैं चाहता हूं कि आप दो मुख्य तथ्यों को आप सीखें। The first thing जो सबसे पहली चीज है in the church, चर्च में, it is the Eucharist. वो है पवित्र प्रभु भोज, It is instituted by our Lord Jesus. और उसकी स्थापना स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई है। If you can all turn with me to the Gospel of St. John, यदि आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर आप खोलें, chapter 6 verses from 54 to 56. अध्याय 6 उसके पद 54 से लेकर के 56 तक, Christ says this, ये मसीह यीशु ऐसा बोलते हैं, whoever eats my flesh जो मेरा मांस खाता and drinks my blood और मेरा लहू पीता है, has eternal life, अनंत जीवन उसी का है, and I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। For my flesh is real food क्योंकि मेरा जो मांस है वास्तव में खाने की वस्तु है, and my blood is real drink. और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। Whoever eats my flesh जो मेरा मांस खाता है and drinks my blood और मेरे लहू से पीता है, remains in me वह मुझ में बना रहता है and I in him. और मैं उसमें। Christ tells this to his disciples. मसीह यीशु अपने शिष्यों को ऐसा कहते हैं। Now when he is telling this, जब वो ऐसा बोल रहे हैं, there are not just his 12 disciples but lot of other people who are following him. वो केवल मात्र 12 उन शिष्यों को नहीं, लेकिन और बहुत तेरे लोग जो उसके पीछे चला करते थे, वे सबको बोल रहे थे। If you read couple of verses down, यदि और उसके आगे पदों को अगर आप कुछ पढ़ेंगे, other people who are following Christ left Christ at this point. और बहुत सारे लोग जो उसके पीछे चढ़ रहे थे, ऐसा सुनकर उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। Till this time they were following Jesus, but when Jesus said this, they left him. और अभी तक वो यीशु के पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह और लहू की बात करी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। They were trying to live a life apart from the Lord Jesus और Christ. वो मसीह यीशु से अलग होकर जिंदगी जीना चाहते थे। The Eucharist is the center of our church life and our Christian life. हमारे कलीसियाई जिंदगी की और हमारे मसीही जीवन का केंद्र ही पवित्र प्रभु भोज है। It is clearly mentioned in the scripture. और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से वचन में लिखा हुआ है, Christ tells, whoever eats my flesh and drinks my blood मसीह यीशु स्वयं कहते हैं कि जो कोई मेरे मांस में से खाता है और मेरे लहू में से पीता है, will have eternal life. अनंत जीवन उसी का है। The Eucharist is a medicine of immortality. अनंत जीवन के लिए पवित्र प्रभु भोज एक दवाई है। Sometimes we come to church और कभी कभी जब हम चर्च में आते हैं and we think that the main thing in the church is preaching. और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया में प्रचार ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। Sometimes our understanding is wrong. कई बार हमारी ये जो समझ होती है वो गलत होती है, We think we are listening a message and we can change ourselves. और हमको ऐसा लगता है कि हम लोग संदेश सुन रहे हैं और हम अपने आप को बदल रहे हैं। We think by our own strength we can fight against sin. हमको ऐसा लगता है कि हम अपने स्वयं की ताकत से पाप के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, But we have to understand. लेकिन हमको समझना पड़ेगा It is Christ who placed us in the church. It is Christ who placed us in the church. और ये मसीह यीशु है जिसने हमको चर्च में रखा है, And this Christ who gave his body and blood for us. और ये मसीह ही है जिसने अपने देह और लहू को हमें दिया है। And it is through the Eucharist that we continue to heal ourselves of our sin. और ये तो पवित्र प्रभु भोज ही है जिसके द्वारा हम लगातार अपने आप को चंगा करते हैं। Eucharist is the center of our Christian life. पवित्र प्रभु भोज हमारे मसीही जीवन का केंद्र है। Any ministry of the church that does not recognize that the Eucharist is the center of our life cannot be followed. कोई भी जो कलीसिया है जो इस बात को नहीं समझती है कि सारी क्रियाओं के बीच में भी पवित्र प्रभु भोज ही मुख्य केंद्र है। We go to church for the Eucharist. हम चर्च पवित्र प्रभु भोज ग्रहण करने जाते हैं। It is God's will that we have the Eucharist. ये प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र प्रभु भोज ग्रहण करें, And we will continue to heal ourselves. और वो लगातार हमें चंगा करते रहेंगे। Second thing I want you to remember carefully. और दूसरी जो बात है, मैं चाहता हूं कि आप बहुत सावधानी पूर्वक स्मरण रखें। Christ entrusted us to someone. मसीह यीशु ने हमको किसी को सौंप दिया है, Who is that someone? और वो कौन है? Christ told that person, until I come back, take care of
this person. और मसीह यीशु ने कहा कि जब तक मैं दोबारा लौट करके ना आऊं तब तक इस व्यक्ति की का ध्यान रखना। Who is that person? और वो व्यक्ति कौन है? That person is our priest and bishop in the church. और वो व्यक्ति कलीसिया में पाए जाने वाले हमारे याजक और हमारे बिशप होते हैं। They are the people that God has appointed to take care of us. ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो हमारी देखरेख करें। They are the people who are responsible for the healing of our lives. ये वे लोग हैं जो हमारे जीवनों की चंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। They are our caretakers that Christ has appointed. और वे हमारे ध्यान रखने वाले वे लोग हैं जो मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। We should never forget that. हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। You look at our bishops and you look at our priests. आप अपने बिशप को देखें, अपने याजक को देखें, आप From top to bottom, ऊपर से लेकर नीचे तक, they represent the ministry that Christ has given them. और वो प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा उनको सौंपी है उसका वो प्रदर्शन करते हैं। They represent the healing ministry of God. वो मसीह यीशु के परमेश्वर के चंगाई की सेवा को प्रदर्शित करते हैं। All our bishops and priests, हमारे जितने भी बिशप हैं और जितने भी याजक हैं, they all go through lot of struggles, problems and difficulties. वे सब भी बहुत सारे संघर्षों, तकलीफों और समस्याओं से होकर के गुजरते हैं। Some of them go through financial problems. और उनमें से कुछ लोग तो कई बार आर्थिक संकट से भी गुजरते हैं। Some of them go through various problems they cannot even share to someone. और कई लोग तो ऐसे तकलीफों से होकर के गुजरते हैं जो किसी दूसरों को वो बता भी नहीं पाते हैं। But they continue to remain in the church लेकिन वो लगातार चर्च में बने हुए हैं for yours and my healing. आपकी और मेरे चंगाई के लिए। We should never forget that. हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। They are the people Christ has appointed, वे लोग हैं जो मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए हैं and they fulfill that responsibility for you. और आपके लिए वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। They face all the troubles and problems for each one of us. हम में से हर एक के लिए वो सारे तकलीफों और समस्याओं को झेल लेते हैं। So any instruction from our bishops or priests, हमारे बिशप से, हमारे याजक से जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं, any correction they give us, जो भी आपको सुधार दिया जाता है, we have to understand it is for our healing. आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारी चंगाई के लिए तो है। Sometimes they will tell us something hard, और कई बार वो हमको बहुत ही कठिन चीज हमको बताते हैं, which we don't want to listen. यदि हम नहीं सुनना चाहते, But we have to understand. लेकिन हमको इस बात को समझना होगा। They are the people Christ has appointed for ये our वे healing. लोग हैं जो हमारी चंगाई के लिए मसीह यीशु ने उनको नियुक्त किया है। Let us follow them. आइए उनके पीछे हम चलें, Let us listen to them आइए हम उनकी सुने and continue our healing. और लगातार हमारी चंगाई को हम जारी रखें। The church is a hospital. कलीसिया एक अस्पताल है। In Mark chapter 2 verse 17, और मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय, Christ says, मसीह बोलते हैं, I have not come मैं इसलिए नहीं आया to call the healthy, भले चंगों को बुलाने के लिए, but the sick. परंतु बीमारों को बुलाने में आया हूं। I have not come to call the righteous, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, but the sinners. लेकिन पापियों को बुलाने आया हूं। Sometimes we think कभी कभी हम सोचते हैं, that once we are a Christian, एक बार जब हम मसीही बन जाते हैं sometimes we might have heard the gospel in some meeting, और किसी सभा में हमने सुसमाचार सुना होगा, and we think, oh, now Christ has saved me, everything is finished. और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह ने तो हमारा उद्धार कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया। Sometimes we think, now I am sinless. और हमको कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अब तो हम बिल्कुल पाप रहित हो गए, Now I am free from the sickness of sin. और अब मैं पाप की बीमारी से मैं आजाद हो गया। But let us not forget, लेकिन न भूलें, we still have to continue this journey of repentance. हमको लगातार ये जो मन फिराओ की जो यात्रा है, पश्चाताप की यात्रा है, उसको जारी रखनी है। This journey of healing, और ये चंगाई की यात्रा है, Christ is continuing to heal us. और मसीह लगातार हमें चंगा करते हैं। This is a lifelong journey for each one of us. हम में से हर एक के लिए ये जीवन पर्यंत यात्रा है। We all struggle with sin. और हम सब पाप से संघर्ष करते हैं। Some of us are seeing things that we should not be seeing. और हम में से कुछ लोग ऐसे चीजों को हम देखते हैं जिन चीजों को हमको नहीं देखना चाहिए, Nobody knows it, और कोई नहीं जानता हमें, but we are seeing it. लेकिन हम उसको देखते हैं।
Some of us are stuck in some relationships. और हम में से कुछ लोग ऐसे गलत संबंधों में हम फंस जाते हैं We know that it is not right for us, और हम ये भी जानते हैं कि वो संबंध सही नहीं है, but we are not able to leave it. लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं सकते। The problem is we are fighting on it by our own strength. उसका कारण यह है कि हम अपने खुद की ताकत से हम उस पाप से लड़ने का प्रयास करते हैं। If you have a trusted priest where you come from, यदि आप उस स्थान से आते हैं जहां पर आपके भरोसेमंद याजक हैं, please go and tell him. आप अवश्य रूप से जा करके अपने उस संघर्ष को बताएं, Ask for his prayers and blessings. उनके प्रार्थना और आशीषों को आप मांगे उनसे। It is through their hands that Christ works. और ये तो उनके ही हाथ हैं जिनके हाथों के द्वारा मसीह काम करते हैं। None of us can live a successful Christian life without a spiritual guide. और हम में से कोई भी बिना आत्मिक मार्गदर्शन के सफलतापूर्ण मसीही जिंदगी नहीं जी सकते। We all need a spiritual guide for our lives. हम में से हर एक को आत्मिक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। Only then can we live a successful life against sin. और तभी हम लोग एक सफलतापूर्ण जिंदगी पाप पर विजय पाकर जी सकते हैं। You cannot live a life against sin by your own strength. आप अपने खुद की ताकत से आप एक जयवंत जिंदगी नहीं जी सकते You cannot live a life against sin without the church. और बिना चर्च के भी आप पाप के खिलाफ आप जयवंत जिंदगी नहीं जी सकते You cannot live a life against sin without the Eucharist. और बिना पवित्र प्रभु भोज के भी पाप के खिलाफ आप जीवन नहीं जी सकते You cannot live a life against sin without a spiritual mentor for your lives. और आपके जीवन के लिए एक आत्मिक मार्गदर्शक के बगैर भी आप कभी भी पाप के विरोध में आप जीवन नहीं जी सकते। There are so many churches today. बहुत सारे आज कलीसियाएं पाई जाती है I had the blessed privilege of studying in the US for a year. और मुझे यूएस में पढ़ने का मौका मिला। So one day, me and my friend, after our morning liturgy, we went for an evening walk. और जो सुबह की जो हमारी लिटर्जी थी उस लिटर्जी के पूरे होने के बाद मैं और मेरे दोस्त हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकले सुबह। So it was in the city of Boston. In a city of Boston, the name of the city. और बॉस्टन जो शहर है वहाँ की बात है। So as we were walking, जब हम लोग चल रहे थे somebody called us in. और किसी ने हमें पुकारा We have a church here. Why don't you come in? और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि अरे आओ ना हमारे पास तो यहाँ पर कलीसिया है, चर्च है। And that worship service was going on while we were going for that walk. और हम जब सुबह जब हम चल रहे थे उसी समय वो भी थे। It was in the evening. वो शाम के समय की बात थी। So we said, okay, fine. Let's just go and see what is happening inside. और हमने कहा कि ठीक है चलता है, चलो जा करके देखते हैं कि क्या है अंदर। And we went inside. और जब हम भीतर गए Once we were inside, जब हम भीतर गए me and my friend, we were looking at each other. और मैं और मेरे जो मित्र थे हम एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे। We were confused. हम लोग बिल्कुल भ्रमित हो गए। It looked like a rock concert. It looked like a musical concert. और वो ऐसा दिख रहा था बिल्कुल जैसे कोई वो संगीत का कोई बहुत बड़ा कोई रूम है, हॉल है। So many lights and guitarists and musicians all on the stage. और पूरे स्टेज में बहुत सारी लाइट थी, रोशनी थे और बहुत सारे वाद्य यंत्र थे वहां पर। And people are jumping and shouting and dancing. और लोग वहां पर चिल्ला रहे थे, झूम रहे थे और नाच रहे थे Full enjoyment. और पूरा भरपूर एक आनंद का माहौल था। There was no icons there. और वहां पर कोई भी आइकॉन नहीं थे There was no Christian symbols there. और वहां पर कोई भी मसीही सांकेतिक चिन्ह नहीं थे There was no Eucharist there. और वहां पर कोई प्रभु भोज नहीं था But everybody is dancing and enjoying. और केवल वहां पर हर व्यक्ति नाच रहा था और केवल वो मजे ले रहे थे। Over the years, people have thrown away different things from our church, और from हमारे the church. Over the years, people have thrown away different things from the church. और समय जैसे जैसे गुजरता गया चर्च के भीतर से लोगों ने बहुत सारी चीजों को उन्होंने निकाल करके बाहर फेंक दिया। First, they threw away the Eucharist. और उन्होंने सबसे पहले तो पवित्र प्रभु भोज को ही अलग कर दिया Then they threw away all the right teachings of the church. और कलीसिया की जितनी सच्ची शिक्षाएं हैं, सही शिक्षाएं हैं, उनको उन्होंने चर्च से बाहर निकाल दिया। They threw away all the icons that our fathers have given us. और जो हमारे कलीसिया के पितामहों ने जो हमें आइकॉन्स दिए हैं उन आइकॉन्स को उन्होंने बाहर कर दिया। They took away the understanding that church is a healing place. और उन्होंने उस समझ को कि कलीसिया एक चंगाई की जगह है, उस समझ को भी लोगों से अलग कर दिया। And now it is something different that we cannot even recognize. और अब बिल्कुल तो ऐसा कुछ हो गया है जिसको हम पहचान भी नहीं सकते हैं। Now, when I say that, जब मैं ऐसा कहता हूं you should know I am also somebody who dances. और मैं भी एक व्यक्ति हूं जो मैं भी नाचता हूं I also sing और मैं भी गाता हूं in my bathroom, बाथरूम में, not in public.
सार्वजनिक तौर पर नहीं। If I sing in public, यदि मैं सार्वजनिक रूप से अगर मैं गाऊं, you will tell your leaders why you have brought us for this torture. और तब फिर आप कहेंगे अपने अगुओं को कि आप ऐसे सिंगर गायक को क्यों आप ले आए, Okay, so that's why I won't sing. और इसलिए मैं नहीं गाता। But I sing when I take a shower. लेकिन जब मैं नहाता हूं उस समय तो जरूर मैं गाना गा लेता हूं, Only I will hear. और केवल मैं ही सुनता हूं। Singing and dancing is not wrong. गाना और नाचना गलत नहीं है, Playing music and enjoying is not wrong. वाद्य यंत्रों को बजाना गलत नहीं है। God wants us to have fun. परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग आनंद करें, But when it comes to the matter of church, लेकिन जब चर्च के ऊपर जब बात आती है there are things that we cannot compromise. और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम समझौता नहीं कर सकते। We cannot lose respect and reverence for God's church. हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए जो आदर है, जो सम्मान है, हम उसको नहीं खो सकते। Liturgy is not the place where we can enjoy and dance and sing. और जो लिटर्जी है वो एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम नाच सकते हैं, कूद सकते हैं और मजे उठा सकते हैं। It is a place where our ultimate focus is on Christ, Christ alone. और वो एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हमारा पूरा केंद्र, हमारा ध्यान केवल मसीह यीशु के ऊपर होता है। It's not what I want, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, it's what Christ wants. लेकिन ये मसीह यीशु चाहते हैं। It's the church that Christ has built. और वो कलीसिया जिसको मसीह यीशु ने बनाया है, It is a place of healing that Christ has put us in. और वो ऐसे चंगाई की जगह है जहां पर प्रभु ने हमको रखा है। We have to merely follow the healing process Christ has given. और वो मसीह ने जो हमको चंगाई की प्रक्रिया दी है, हमको उसको पालन करना होगा। And when I was in the US, I again went to another church in a different time. और जब मैं यूएसए में था तो मैं एक और समय में किसी दूसरे चर्च में गया, One of my friends said, you know, the teaching in this church is fantastic. और मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, वो चर्च में जो शिक्षा जो दी जाती है बहुत ही रुचिकर है। I thought, okay, let me go and see what unique teaching is there. और तब फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, मैं भी जा करके देखता हूँ कि कौन सी अच्छी शिक्षा वहां पर दी जा रही है। And I went to that church. और मैं उस चर्च में गया, And it was not a traditional church, और वो कोई पारंपरिक कलीसिया नहीं थी, but even some churches, at least they will have a pulpit. लेकिन कुछ तो ऐसे चर्च हैं जहां पर पुलपिट होता है, At least they will have maybe some Bible on the pulpit. और कम से कम उस पुलपिट में एक बाइबल भी वो रखते हैं। This church was it had an empty stage. और वो जो चर्च था बिल्कुल उसका जो स्टेज था पूरी तरह से खाली था, And there was a preacher walking here and there और वहां का जो प्रचारक था वो इधर से उधर वो चलता था and talking different kind of things, और विभिन्न प्रकार की बातों को वो बोल रहा था। full of motivational talks. और वो जो ऐसे बातचीत थे जो हमारे अंदर हमको प्रोत्साहित करते हैं, Christ will do that, Christ will do this. और मसीह तुम्हारे लिए ये करेगा, मसीह तुम्हारे लिए वो करेगा। There was not even a pulpit or a scripture in his hand. और वहां पर उसके हाथ में बाइबल भी नहीं थी। Many of us see different things on YouTube. We see different things on YouTube. हम लोग YouTube में इन दिनों बहुत सारे ऐसे वीडियोस को भी हम देखते हैं, We will see some motivational preachers, और हम लोग ऐसे प्रोत्साहित करने वाले प्रचारकों को भी हम लोग देखते हैं, and they will say different things. और वो कई विभिन्न प्रकार की बातों को बताते हैं। And when they say something motivating, we are motivated at the moment. और जब हमको प्रोत्साहन से भरी हुई बातों को वो बोलते हैं तो हम लोग उस घड़ी प्रोत्साहित हो जाते हैं, But we don't know what kind of belief they are believing. लेकिन हमको नहीं समझता कि वो किस तरह के विश्वास को वो रखते हैं अपने में। Maybe they will encourage you, और हो सकता है कि जरूर कि आपको उत्साहित तो वो करें, but they might not believe anything about the church that they should be believing. लेकिन चर्च के विषय में जो विश्वास उनको करना चाहिए उनमें से कुछ भी विश्वास वो नहीं करते, They are doing things on their own strength. और वे उन सारे कामों को अपने खुद की ताकत से करते हैं। Christ has entrusted us to his church. मसीह यीशु ने हमको इस कलीसिया को सौंप दिया है। The church is a hospital. ये जो चर्च है वो एक अस्पताल है। It is the central place of our salvation. हमारे परिवार के लिए भी ये केंद्र जगह है। Every time we have the liturgy, हर बार जब हम लिटर्जी करते हैं, we have to understand Christ and the heavenly host are present with us. और हमको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह और सारी स्वर्गीय सेना वहां पर उपस्थित होती है, They are all present with us और वो सब हमारे संग उपस्थित होते हैं in the liturgy. लिटर्जी में। We should never forget that. हमें कभी भी इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। We all do different things in life. और हम लोग अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के काम हम करते हैं। We all travel to different places for our education and work.
हम अपनी शिक्षा के लिए और काम के लिए अलग अलग स्थानों में यात्रा करते हैं। Wherever we travel, जहां कहीं भी हम यात्रा करते हैं, one thing we have to understand, एक बात हमको समझना होगा, the center of our life must always be the church. हमारे जीवन का केंद्र हमेशा चर्च ही होना चाहिए। Always be the church. हमेशा चर्च ही होना चाहिए। Do whatever, do your work, do your studies. आप जो भी काम करें, अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें, But church should be the center of our lives. लेकिन चर्च जो है हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। It is there that we are continuing to heal ourselves. और ये वही तो जगह है जहां पर हम लगातार अपने को चंगा करते रहते हैं। We are on the journey of healing and bettering ourselves. और हम उस यात्रा में है जहां पर अपने आप को हम लगातार चंगाई की प्रक्रिया में और अच्छा करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। That is something we should never forget. और हमें कभी इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। We have to understand. हमें समझना होगा। Like Julius Tirmeni came yesterday and spoke to us. और कल जैसे कि हमारे तिरमेनी ने आकर के हमसे बात किया, We are a very unique church. और हम लोग बहुत ही अद्भुत चर्च हैं हम लोग। We are in all countries in India. और भारत के हर एक राज्य में हम फैले हुए हैं, Sorry, all states in India. सारे राज्यों में हम फैले हुए हैं। And we are everywhere with different languages, different culture. और जहां भी आप जाएं, आपकी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, But we are one church. लेकिन फिर भी हम एक कलीसिया है। We are one in our faith. हमारे विश्वास में हम एक हैं। We are all in the journey of repentance. We are all in the journey of repentance. फेथ, Journey of repentance. पिलग्रिमेज, Repentance. रिपेंटेंस, सॉरी, हम सब पश्चाताप की यात्रा में हैं। We should never forget that. हमको कभी भी इस बात को नहीं भूलना है। Church is the central place कलीसिया जो है वो केंद्र स्थल है of our healing. हमारे चंगाई के लिए। Don't run away from the church चर्च से आप दूर भाग न जाएं and say that you can live a successful Christian life alone by reading the scripture. और आप ऐसा ना सोचें कि आप अकेले रहकर वचनों को पढ़ते हुए एक सफल मसीही जीवन आप जी पाएंगे। Don't think now we have internet, I can see some Christian videos and I can live a life against sin. और आप ऐसा भी ना सोचें, अभी तो हमारे पास इंटरनेट है, बहुत सारे मसीही वहां पर वीडियोस हैं जिनको देख करके हम मसीही जीवन जी सकते हैं। That might be what you are thinking, हो सकता है कि आपकी ये सोच होगी, but that is not Christ's plan for our life. लेकिन आपके जीवन के लिए मसीह की योजना ये नहीं है, It is Christ who carried us. क्योंकि ये तो मसीह यीशु है जो हमें उठाए लिए चलते हैं। When nobody wanted us, और जब हमें कोई नहीं चाहता था, Christ carried us and put us in a church, और ये तो मसीह ही है जो हमें उन्होंने उठा करके हमको चर्च में सौंप दिया, the place of healing. एक ऐसा स्थान जहां पर चंगाई हमें मिलती है। Let us never forget that. आइए हम इसे कभी भी ना भूलें। I want you all to take a moment now. और आइए हम लोग एक पल हम ले लें अपने लिए, And for the next 10 minutes, और आने वाले 10 मिनटों में all the things that I said, और जो भी चीजें मैंने आज आपसे कही है, I want you to write the things that struck your heart. और मैं चाहता हूं कि जिन चीजों ने आपके हृदय को छुआ है, आप उन चीजों को आप लिख लें। And I want you to write the decisions that you're going to make from what you heard today. और आज जो भी आपने सुना है उसके आधार पर जो निर्णय आप लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने उन निर्णयों को आप लिख लें। 3 things I want you to specifically write in your book right now. और मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त आप 3 बातों को आप अपने किताब कापियों में आप लिखें। First, पहली बात, church is a place of healing. कलीसिया चंगाई की जगह है, I am continuing to be healed in the church. और चर्च में रहकर मैं लगातार भला चंगा बना रहूंगा। Second, दूसरी बात, have you written the first point? क्या आप लोगों ने लिख लिया? Second point, दूसरा जो बिंदु है, the Eucharist is the center of our worship. पवित्र प्रभु भोज हमारी आराधना का केंद्र है। It is instituted by God for our eternal life. ये हमारे अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है।
Third point. तीसरा बिंदु, I want you to write this. मैं चाहता हूं कि आप लिखें, Please write the bishops and priests of our church. हमारी कलीसिया के The bishops, बिशप और याजक गण, they are the people Christ has entrusted for our healing. उन्हें परमेश्वर ने हमारी चंगाई के लिए नियुक्त किया है। We cannot heal ourselves without their guidance. उनके मार्गदर्शन के बगैर हम अपने आप को चंगा नहीं कर सकते। One more time? Okay, good. क्या एक बार और बोलूं? The bishops and priests of our church हमारी कलीसिया के बिशपगण और याजकगण are the people that Christ has entrusted our lives with. हमारे जीवन को मसीह ने उनके हाथों में सौंप दिया है। We cannot live a life against sin हम पाप के खिलाफ हम जीवन नहीं जी सकते without the guidance of our bishops and priests. हमारे बिशप और याजकों के मार्गदर्शन के बगैर। Have you written it down? क्या आपने लिख लिया? Now, I want each one of you to look down to your book what you have written. और मैं इस समय चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक अपनी कॉपी को देखें, आपने उसमें क्या लिखा है। Read it 5 times, read it 10 times. आप उसे 5 बार 10 बार आप उसे पढ़ें। I want you to place your hands on what you have written. और मैं ये भी चाहता हूं कि जो आपने लिखा है उस पर आप अपने हाथों को रखें। And I want you to make a prayer for yourself. और मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। Ask God to help you have this realization. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी सहायता करे। Put your hands on what you have written. जो आपने लिखा है उसके ऊपर अपने हथेलियों को रख करके आप प्रार्थना And करें। ask God, God, please help me to continue my journey of healing. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी सहायता करें कि मेरी इस चंगाई की यात्रा को मैं लगातार जारी रख सकूं। Let me give you 5 minutes for that. 5 मिनट का समय मैं देता हूं। May I request our Episcopal to please come and send us with blessings.